So let's start today's session. So we have in the last lecture we have seen that the normal way of making any information retrieval system is not a good way. So so the way we have done is the inverted indexes and other things. So uh, so now today we will from today's lecture we will start working on these things like the tokenizer. And so today's session will be actually based upon the tokenizer. So, and that how to token the things. And then we will work upon these things, that how to modify tokens and then how to create index from then from these tokens. So whenever we want to parse a document, we first need to know that what is its kind. So whenever you get any assignment, let's say I just got one of the project which I am currently doing. So in that project, we have to take documents from many websites. So we have to generate a web crawler, and from the web crawler, we are extracting different pages, and these pages obviously the main starting page is the HTML page, but sometimes the information embedded in those documents is in the PDF format. So whenever you get information, so first of all you need to know that the format of that particular thing. And another thing is language. Obviously most of the time the language is in English only, but still there are many websites which are not only in English but in different languages as well. So before processing anything, we must need to know that what is the language. Then third is the character embedding. So like you, all of you have also started doing working in the Python as well. So in the Python, whenever you will see any data set, and if you are not able to read that particular data set, so most of the time the reason is the encoding of that particular data set. So encoding is most of the data set in the CSV format especially. So when these are CSV format, so when if I create any data set, let's say original data is in the Oracle. So when I create CSV, so I have to think about the encoding scheme. So encoding must be in the UTF 8 or 16. So depending upon the your encoding scheme, the Unicode encoding scheme, so it must be either 8-bit or it must be in the 16-bit. If you are using the multiple languages, obviously it has to be in the 16-bit. And even if you are using emojis and other things, so now you might be aware that all the emojis are part of Unicode. So every year, whenever we see new emojis, so they are part of Unicode. So earlier, what used to happen is that in one app, let's say आप WhatsApp में emoji use कर रहे हो, so वो दूसरी ऐप में data transfer नहीं होता था. But now these are Unicode characters. So हर emoji एक Unicode character है. So later on we will see that how to do this in the Python as well. But काफी बार ये heuristically हम इन चीजों को solve करते हैं. So now the main complication is document which is being indexed may include document from many different languages. It might possible that एक ही document के अंदर कई languages हों. ये task it is again research problem कि कैसे इसको effectively solve करना है. Or in any context, like in for Indian context, suppose I am speaking a particular way. So suppose मैं कोई language बोल रहा हूँ, तो I am mixing Hindi and English and all those stuff. तो उसके base yes. So anyone want to add? Srishti? So अगर suppose मैं कुछ language बोल रहा हूँ और मेरा कोई speech to text convert कर रहा है इसी moment पे, then what would happen? So
you cannot use only English word, because I am mixing Hindi words and I am sometimes I am speaking some Hindi words. So single index of one language won't suffice in many cases, especially in Indian context when we are mixing the language, uh, uh, and then obviously one particular index won't work. And sometimes a document or its component contain different formats, the way it is written. We will discuss these examples right now. So so now, before starting NLP task, first you need to define the what is actually a unit document. So एक यूनिट डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा. सो यूनिट डॉक्यूमेंट आपकी एक फाइल हो सकती है. जैसे अगर एनएलपी में यूजली हम मान के चलते हैं कि हमारे पास फाइल्स है और फाइल में डाटा है, और जहाँ एक डेटाबेस हो सकता है. फाइल एक जरूरी है कि एक सिंपल टेक्सचुअल फाइल है. इट मे बी ए CSV फाइल जिसमें हाइपर टेक्स्ट एक लिंक है और उससे आप रिट्रीव कर रहे हो. सो दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी. सो डू डॉक्यूमेंट को डिफाइन कैसे कर रहे हो? सो कोई ईमेल पे ऊपर काम कर रहा है तो उसके लिए ईमेल एक डॉक्यूमेंट है. किसी के लिए एक ट्वीट भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है. सपोज कोई सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा है तो उसके लिए वन ट्वीट इज ए वन डॉक्यूमेंट. कि यूनिट क्या है? एक ट्वीट है. किसी के लिए व्हाट्सएप मैसेज एक डॉक्यूमेंट हो सकता है. कोई एक ईमेल विद अटैचमेंट एक डॉक्यूमेंट हो सकता है. सो ये एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये हर प्रॉब्लम की अलग अलग होगी. ठीक है. तो हम जब भी इन आवर कोर्स व्हेन एवर वी यूज डॉक्यूमेंट वर्ड, इट मीन्स कि यूनिट लेवल पे वो प्रॉब्लम के साथ डिफाइन होगा. इट माइट बी पॉसिबल कि किसी केस में सिंपल सी ट्वीट है 50 कैरेक्टर की, और किसी केस में पूरी पीपीटी है विच इज मे बी ऑफ 10 MB विद इमेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दैट इज वन डॉक्यूमेंट. सो उससे हमें फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है. सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जैसे वेब के केस में तो एक HTML एक वेबसाइट को कई बार हम डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, और कई बार एक वेब पेज यानी वेबसाइट तो काफी बड़ी है उसका एक पेज को डॉक्यूमेंट मानते हैं, और कई केसेस में उसके फ्रेम वाइज भी अंदर की इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट मानते हैं. सो देयर आर multiple things that we do in the whenever we start the NLP task. ये क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो यहाँ तक? सो अब हम टोकनाइजेशन पे ऊपर काम करेंगे. टोकनाइजेशन में आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू पाइथन आपको कितने लोगों को आती है? आप चैट में लिख सकते हो या फिर आपने पहले भी पूछा था एक बार, आपने अभी तो कर रहे हो ना पाइथन. सो किसी को पाइथन में बिल्कुल नहीं आता वो बता सकते हैं. हाँ जी, शानी, श्रुति, साहिल, आपको आती है ना पाइथन? बेसिक्स पाइथन के आते हैं ना? यस सर, कोर्सेरा से कोर्सेज कर रहे हैं. तो अब इस कोर्स में ना मैं तो ये चाहता हूँ मैं साथ साथ आपको पाइथन का कोड भी करवाता जाऊँ. ठीक है. जैसे आजकल लेक्चर में क्या होगा कि हम टोकन्स के ऊपर काम करेंगे, बट मैं साथ में ना थोड़ा सा पाइथन का कोड भी आपको साथ साथ स्टार्ट करा दूंगा. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग विद बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पुश करूंगा, ओनली फ्यू थिंग्स एनएलटी के मैं स्टार्ट करवा दूंगा. ठीक है. तो धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे हम, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ बिल्डअप होती जाएगी भी एक्चुअली करते कैसे हैं. ठीक है. ये क्लियर है सबको? यस सर. तो ठीक है, फिर हम आज टोकनाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. सो इसी का बाद में अगर टाइम लगा आज नहीं तो फिर कल के लेक्चर में पाइथन में भी करेंगे. ठीक है. सो टोकनाइजेशन क्या है? वी नाउ सीन कि डॉक्यूमेंट क्या है. ठीक है. पहले तो हमारा काम था कि डॉक्यूमेंट क्या है. डॉक्यूमेंट यानी कि प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है कि किसको आप डॉक्यूमेंट कहते हो. एक इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट. एक ट्वीट भी हो सकता है जैसे मैंने लास्ट लाइन में किया. सो सेकंड टास्क होता है कि डॉक्यूमेंट को डिवाइड करना. सो डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. सो जब भी डिवाइड करना है तो किस चीज में डिवाइड करना है? सो दैट इज मेन थिंग इज कि टोकन्स में डिवाइड करना है. सो एक वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए तो टोकन क्या होते हैं? वर्ड्स ही टोकन्स होते हैं. जैसे अगर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट है तो वर्ड्स आर टोकन्स, बट कोई और कोई डॉक्यूमेंट है जैसे इमोजीज भी एक टोकन हो सकता है, and similarly for images and other things. So
सो दीज जैसे ऑडियो के केस में एक फ्रेम हम टोकन बना लेते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो सिंपलेस्ट यूनिट है जिसके ऊपर काम करना है, दैट इज अ टोकन। इस कोर्स में हम ज्यादातर एग्जांपल तो टेक्स्ट की लेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। सपोज आपके पास इनपुट्स ऐसी आ रही है, कोई भी आपने फाइल रीड की है और आपके पास ये आ रही है। सो टोकन आपको क्या चाहिए, ये फाइनल वर्ड्स आपको टोकन चाहिए। सो टोकन इस केस में क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। सो इस केस में तो बड़ा इजी है अभी, कहाँ पे टोकन एंड हो रहा है, एक ब्लैंक स्पेस से पता चल रहा है कि कहाँ पे टोकन एंड हो रहा है। तो इट इज इजियर फॉर डूइंग दैट। बट टोकन कई बार जरूरी है कि भी इतना इजी हो, कई बार वही हम अब एग्जांपल देखेंगे कि वाई टोकनाइजेशन में भी एक कंसिडरेबल टास्क। सो इसके ऊपर हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, बट हम चाहते हैं कि वैलिड टोकन ही हमें मिले। सपोज अब हम इश्यूज देखेंगे कि आप कहाँ प्रॉब्लम आती है। सपोज हमारे पास ऐसा लिखा है फिनलैंड कैपिटल, ठीक है, तो अब इसमें टोकन क्या है, फिनलैंड टोकन है, फिनलैंड्स टोकन है, क्या इसको साथ में लेके जाना है, फिनलैंड्स एक टोकन है, तो क्या टोकन है, तो ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली इज अ टोकन। सपोज समवन यू से दैट ओके यू डू नॉट नीड टू कंसीडर प्लूरल और possessive letters, but how to write these rules, because there are so many rules in the English. So which is the valid token here? So this is the question we need to solve. Another example is, let's say this is written Hewlett Packard. So whether Hewlett is one token and Packard is another token, or whether combine is one token. If I ask some human, so some human will say, okay, Hewlett Packard should be treated as a single unit. But how to tell this to the computer? How to tell that Hewlett Packard is a single unit, not separate unit? So somebody may say that okay, break up hyphenated sequences, remove hyphenated. So like co-education, it has to be single unit. Somebody may say only consider lowercase, like lowercase and this lowercase. So all of these are same. So uh, there are multiple ways that why do we put hyphens. And then there is another example like New Delhi. So whether it is a one token or two token. So ठीक है, ह्यूलेट पैकर्ड के केस में तो आप रूल बना सकते हो कि बीच में माइनस आ रहा है, हाइफन आ रहा है, तो वो सिंगल टोकन है। बट न्यू दिल्ली के केस में हाउ टू डू इट, whether new is a separate token or New Delhi is a single token, because many times when you are reading this so text, as a human we know that, because in our dictionary as a human we know that New Delhi is important, one of the city, so it is a one token, but how to tell this to the computer? So this is one of the issue. आपको कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आई नीड योर हेल्प एज वेल। सपोज आज की डेट को हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, आज है 8/9/2020। सो आई वांट कि चैट में आप कितने तरीके से इसको लिख सकते हो। सपोज आई राइट 8 सितंबर, आप में से किसी को भी यूनिक वे आता है, वो चैट में जो मैं लिख रहा हूँ उससे डिफरेंट वे से लिख सकते हो डेट को, तो जस्ट राइट। मैं भी डिफरेंट वे से लिख रहा हूँ, आप में से जो मैं लिख रहा हूँ उसमें से कोई डिफरेंट वे से, एनीवन नोस हाउ टू राइट दिस डेट इन डिफरेंट वे? सो श्रुतिका ने भी लिखा है एक वे, वो चैट मेरे कल सबके साथ ही, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप भी जो मैं लिख रहा हूँ उससे डिफरेंट वे से डेट को कैसे लिखना है। सो देयर इज, ईशानी ने भी लिखा है, इट इज डिफरेंट वे से। और भी आप लोग ट्राई करो, किस तरह से। सिमरन ने लिखा है सितंबर 8। सो देन श्रुतिका ने भी एक और तरीके से लिखा है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट दिस डेट। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं?
So how many ways could be there? So there are multiple ways. So बाकी आप लोग और भी ट्राई कर सकते हो, क्या क्या वे से हम लिख सकते हैं ये। So कितने तरीके से कर सकते हैं? कैन एनीवन काउंट कि कितने तरीके से? श्रुतिका ने एक और वे से लिखा है। सो 2020 को भी हम अलग वे से लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी कई वेज लिखे हुए हैं, और जरूरी नहीं है कि हम स्पेस दें, और हम कई वे से लिख सकते हैं। सो कितने वेज हो सकते हैं? आपने सबने परमुटेशन पढ़ा है। तो सबसे पहले तो डे को लिखने के कितने तरीके हैं? 8 भी लिख सकते हैं, 08 भी लिख सकते हैं, 8 ऐसे भी लिख सकता है कोई इंग्लिश में। ठीक है, तो 3 तरीके से डे लिखा जा सकता है। उसके बाद डे के बाद वाला जो स्प्रेटर है उसको लिखने के इधर स्पेस हो सकती है, कोमा हो सकता है, हाइफन हो सकता है, स्लैश हो सकता है। सो उसके बाद का सेपरेटर 4 तरीके से डाल सकते हैं हम। फिर मंथ का नाम पूरा लिख सकते हैं, 09 लिख सकते हैं, 08 लिख सकते हैं, 9 सिंपल लिख सकते हैं, 9 इंग्लिश में लिख सकते हैं, सितंबर लिख सकते हैं, सेप्ट लिख सकते हैं, एससीपी लिख सकते हैं। सो देर आर मोर देन 10 वेज की हम मंथ लिख सकें। मंथ के बाद वाला सेपरेटर भी कई तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से लिख सकते हैं, और लेट्स से ईयर को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो विपाशा ने भी डिफरेंट वे से लिखा है। कईयों में मंथ पहले आ सकता है, डे बाद में आ सकता है। सो अगर ये सारे वे से अगर हम भी इसको देखें तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज, इन सब का अगर पूरी कॉम्बिनेशन देखें भी कितने हो सकते हैं। सो दिस वुड गो मोर देन अराउंड 1500 वेज। ठीक है, इतने वे से हम डेट लिख सकते हैं। सो अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोग्राम बनाना है, कि यूजर ने डेट डाली और आपने डेट रिकॉग्नाइज करनी है, सो सो व्हाट वुड बी द वे टू डू इट? सो क्या वे हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि डेट को रिकॉग्नाइज करना है, आपका फर्स्ट चॉइस क्या होगी? एनीवन? नॉर्मली कैसे करते हैं? यूजर से डेट लेनी हो तो हम क्या करते हैं? कैलेंडर शो करते हैं यूजर को, अगर यूजर से डेट लेनी हो। हाँ, तो ज्यादातर इंटरफेस में क्या करते हैं, वो कैलेंडर डेट पिकर होता है, डेट पिकर से डेट लो, क्योंकि उनको पता है कि डेट कोई भी कैसे भी डाल देगा, तो यूजर को मौका ही नहीं देते। या तो कैलेंडर दे देते हैं, या फिर फॉर्मेट लिख देते हैं कि एंटर डेट के साथ ना कोई लोग फॉर्मेट लिख देते हैं कि डी स्लैश एम, ऐसे करके फॉर्मेट। और अगर हम नहीं यूज करते तो एरर आएगा, वैलिडेशन करते हैं। तो इंटरफेस में इसको प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। बट अगर तो डॉक्यूमेंट में आ रही है, जैसे अगर डॉक्यूमेंट है तो इंटरफेस के थ्रू तो आ नहीं रही, तब ये प्रॉब्लम जो है, अब तो क्योंकि आपने तो यूजर ने तो जैसे मर्जी लिख दिया, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट है, जैसे डॉक्टर से हम लिख रहे हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन और हम उसको स्कैन कर रहे हैं, तो वो तो जैसे मर्जी डेट लिख सकते हैं। तो उस केस में इंटरफेस से नहीं आ रही, तो कुछ भी तरीके से आ जाएगी। तो अब हमारे पास चॉइस क्या है? अगर मैं इफ देन एल्स लगाऊं भी, अगर डेट ये है तो ऐसे है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि क्या और क्या तरीका हो सकता है? व्हाट कुड बी द अदर वे? सपोज आपको पता है कि ये आपने उठा लिया है, इतने कैरेक्टर उठा लिए हैं, और इसमें से आपने डे और ये निकालना है, डे निकालना है, मंथ निकालना है, और ईयर निकालना है। तो इफ देन एल्स तो काफी लग जाएंगे। अगर इफ देन एल्स से शुरू करोगे आप, बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा। तो व्हाट कुड बी द अदर वे? यस एनीवन? किसी को कुछ आइडिया हो? फिर स्विच केस होता है, लेकिन वो भी काफी एक्सपेंसिव ही होगा। हाँ हाँ, जो इफ और स्विच केस, ये ऑपरेशन काफी हैवी होते हैं। आपने माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ा होगा, काफी साइकिल ले लेते हैं ये इफ स्विच केस ऑल दोस थिंग्स। स्विच केस जैसे पाइथन में खत्म ही कर दिया, ठीक है, तो वेरी हैवी ऑपरेशन होता था, पाइथन में नहीं होता।
तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई तो कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस एक वो वे है, बट उसमें भी डेट के बहुत ज्यादा फॉर्मेट नहीं हैंडल हो पाएंगे। सो इसके लिए नॉर्मली क्या होता है, अभी आजकल जो सोल्यूशन चलते हैं, वैसे तो पाइथन में तो एक एपीआई है, उसी से डेट निकाल लेते हैं। सो डेट फाइंडर करके एक एपीआई है, उसी से निकाल लेते हैं। बट अगर सपोज मुझे सोल्व करनी हो प्रॉब्लम, तो एक सिंगल लेयर का न्यूरल नेटवर्क मॉडल से हम सोल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। बड़ा सिंपल से न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनता है और हार्डली उसका पूरा साइज जब हम देखेंगे अराउंड 2 KB के अराउंड ही रहता है, यानी कि 2000 बाइट्स का एक सिंपल मॉडल बनता है और वो सारी डेट्स निकाल देता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीप लर्निंग। अदरवाइज इतनी इफ देन एल्स हम नहीं लगा सकते, उसमें हमें हर तरह की डेट और एक बार ट्रेनिंग सेट बनाना पड़ेगा भी। ये जितनी भी 1500 डेट्स हैं और ये मिल जाता है नेट पे, लोगों ने बनाया हुआ है, और उसके बाद ये हर तरह की डेट में से मंथ, डे और ईयर निकाल देता है। सो नॉर्मली इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है। बट ज्यादातर लाइब्रेरीज में अभी एनएलटीके में भी देखें कि काफी लाइब्रेरीज में ये पहले से फंक्शन बने हुए हैं। सो दीज आर एफिशिएंटली मेड। खुद ऐसा फंक्शन बनाना हो कि डेट निकालना, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही टोकन से आप देखो कई टाइप के होते हैं। जैसे कोई ऐसा कोई लाइन लिखी है तो डेट निकालनी मुश्किल है, तो ऐसे टोकन निकालने बड़े मुश्किल से। इवन टेलीफोन नंबर, इसके लिए भी अब न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। पहले टेलीफोन नंबर्स क्या होते थे कि जैसे इंडियन आपको पता है कि 10 डिजिट्स का है या 11 डिजिट्स का है, बट काफी जगह पे टेलीफोन नंबर्स भी कई तरीके से होते हैं। जैसे ये यूएसए का है और कई लोग कई तरीके से लिख देते हैं, जैसे चंडीगढ़ का 0172 कई तरीके से लिख देते हैं। Even though if then else a regular expression are the choices, when number of choices are less than 20, तब ये चीजें easily programmable हैं। बट जैसे ही उसके बियॉन्ड जाना शुरू हो जाता है, इवन सम प्रोग्रामर से कि मुझे if then else अच्छा लगता है, बट वो if then else कंपैरिजन करना काफी टफ हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के लिए, काफी साइकिल लग जाएंगे। तो इन सभी में एक, यानी कि आपके पास टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट आ रहा है और उसमें से डेट निकालना है। जैसे अभी पीछे हमने वेबसाइट में से डेट निकालनी थी, तो अब उसमें जो मेरे साथ स्टूडेंट्स काम कर रहे थे, सो दे फर्स्ट ट्राइड कि हाँ इसी प्रॉब्लम के लिए, बट लेटर देन वी स्टार्टेड यूजिंग एपीआई फॉर दैट। खुद प्रोग्राम लिखने में और वो एफिशिएंटली चले, इट वुड टेक ए टाइम। ठीक है। सो अब इस तरह से जितने भी इंफॉर्मेशन ड्रिवन सिस्टम है, जो पुराने इंफॉर्मेशन ड्रिवन सिस्टम आते थे, पुराना गूगल सर्च इंजन आज से 10 साल पहले, उसमें नंबर्स को वो इग्नोर ही कर देता था, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अप दीज नंबर्स। एंड मेटा डाटा, डेट, क्रिएशन डेट, फॉर्मेट, जहां जहां नंबर आते हैं इनको वो अलग से ट्रीट करते थे। जहां भी नंबर आ जाता था उसको अलग कर देते थे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दीज नंबर्स इन द एनएलपी में। सबसे मुश्किल टास्क है और इन पे काफी टाइम लग जाता है एनएलपी में। देन लैंग्वेज इश्यूज। सो लाइक फ्रेंच लैंग्वेज में एल इंसेंबल, फ्रेंच लैंग्वेज के तो काफी वर्ड वी यूज इन आवर इंग्लिश एज वेल। देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच आर पॉपुलर। सो उसमें ये बहुत दिक्कत होती है। वन टोकन है कि देयर आर टू टोकन्स, so we want L ensemble to match with un ensemble, actually the way it is pronounced. So until 2003, so Google never recognizes all these things. After 2003 Google started recognizing, but even today if I have to make my own NLP program, it is very difficult to manage these languages. Imagine this word. So this is the German noun compound. In German, if there are nouns are coming together, they are not segmented. They are without any space. They are put together. Now this is one word in the German. Now to recognize this word using a simple means, it is very difficult. So we need to have a separate way to deal with the German languages. Even in Indian languages, these are there are many things. आप में से किसी को बंगाली आती है? बंगाली, हैव यू एवर नो, कोई बंगाल से है या बंगाली आती है किसी को? No sir. So Bengali, actually when I was No, in, sir. when I was in IIT Kharagpur,
So मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ रहना है थोड़े साल, तो why not to learn Bengali? So I tried to learn the Bengali, but what happened is in Bengali like हिंदी में वर्ड होते हैं, जैसे आप दो वर्ड को मिला के श बना दिया, या ग बना दिया, या तरह बना दिया। ऐसे हिंदी में तो यू नो दैट देयर आर वर्ड्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर, या वो करते हैं। तो जैसे ध्यान देना, द, आधा द और य, ऐसे। सो दीज आर द वर्ड्स इन हिंदी दैट वी डू। बट बंगाली में ये सिर्फ दो तक नहीं रुकता, ये 4-5 कैरेक्टर तक कंबाइन हो जाते हैं। So when I started learning Bengali, so it was very difficult as a human for me to learn, because these characters, they create one character by combining 3, 4 and 5 characters. And it was very difficult to then to start understanding Bengali. So Bengali is almost equal to Sanskrit, and उसकी वर्णमाला भी वैसी है जैसे हिंदी की होती है। को बोलते वो अलग है, जैसे हिंदी में क बोलते हैं वो को बोलते हैं, ख बोलते हैं वो खो बोलते हैं। बट I thought it would be easy, but further then they start combining these characters to create a word. So that's why these things, dealing with the language is very difficult task in the NLP. So there are different modules which are there. Like for German, we have compound splitter. These kind of modules are there, but even for Bengali nowadays, they have done a good splitter to character level splitter. But still, these are very difficult to deal with. Now language, further, many of you won't be liking Chinese, but like look at the Chinese language. So there are no spaces between the words. So how to get a unique token? And there are more than, earlier in the Chinese, there were more than 4,000 words. Now in the new, even in the new, there are more than 1,000 words. And even in the Japanese, multiple alphabets are intermingled, dates, all these things. So these things are intermingled, and it is very difficult to deal and understand these things and to extract anything out of this. So in tokenization, these language issues keep on getting complicated. Further, in the Arabic languages, they are not from left to right, but from right to left. So, okay, you know that it is Arabic, you can start reading from here, but the number in that, number again from left to right. So we won't read it as 2691, but 1962. So whenever you are reading this, whenever you encounter number, then you have to start reading from the other side around. So these kind of complexities which are created by the languages from one area to another area, so it is very difficult to deal. And currently, as a global, we know that whenever you make anything NLP, either you keep your focus on English, but as you move on to any other language, you have to deal with all these issues. So making anything which is language independent, it is very tough. So these things like these words. So this is written: Algeria achieved its independence in 1962 after 132 years of French occupation. So sometimes we reading it from right to left, then left to right. And now only good thing is everything is in the Unicode. Everything is in the Unicode. But still it is very difficult to deal with these languages. Anything you want to add? कोई इशू हो? So मैं अभी आपके साथ अपनी जुपिटर नोटबुक शेयर कर रहा हूँ, उसमें हम देखेंगे टोकनाइजेशन करते कैसे, ठीक है? ये नोटबुक दिख रही सबको आपको? यस सर। सो नाउ जब भी आपने इसमें काम करना है, जैसे इसमें मैंने NLTK आई हैव स्टार्टिंग, व्हाई NLTK? सो NLTK इसलिए मैंने स्टार्ट किया है, NLTK is a base library. Whenever you start with NLP, NLTK is a base library. But if today you ask me if I have to use
टोकनाइजेशन इन माय प्रोजेक्ट आई वांट यूज एनएलटीके, बट फिर मैं यूज क्या करूंगा, देयर आर अदर लाइब्रेरीज, सो वो हम ग्रेजुअली वहां तक जाएंगे कि कौन सी लाइब्रेरी होती है, बट फॉर स्टार्टिंग हर जगह आपको एनएलटीके के ऊपर ही काम करना है। सो इसका जब भी आपने एनएलटीके पे काम करना है तो इंपोर्ट ऑब्वियसली, इफ यू हैव कुछ भी अभी आप पाइथन में आपने सीखा है तो वी हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी। और जो सेकंड लाइन है मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये क्यों लिखी है, किसी को आइडिया है? मैटप्लॉटलिब इनलाइन, नो वन हैज एनी आइडिया? नो सर। कोई सा ही नहीं। सो मैटप्लॉटलिब इनलाइन अगर मैं नहीं लिखता ना, तो जब मैं जुपिटर नोटबुक में चलाऊंगा तो मैटप्लॉटलिब के जो ग्राफ होंगे, फिगर्स होंगी, वो डिस्प्ले नहीं होंगी, वो क्रिएट होंगी बट डिस्प्ले नहीं होंगी। सो आई कैन सेव देम एज मैटप्लॉटलिब के अंदर ही फंक्शन होता है सेव करने का, बट वो यहाँ पे इनलाइन डिस्प्ले नहीं होंगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फिगर यहीं पर दिखे ब्राउजर में, तो देन आई हैव टू ऐड दिस लाइन, ठीक है, और मुझे मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट लेटर ऑन करनी पड़ेगी। पहला काम एनएलटीके डाउनलोड। ये जो है एनएलटीके डाउनलोड क्यों चलाना है? एनएलटीके लाइब्रेरी सर मैटप्लॉट से तो ग्राफ शो होंगे, बट अगर सब इनलाइन नहीं लिखोगे ना तो यहीं पर ब्राउजर में नहीं आएंगे। ठीक है सर, ठीक है। इनलाइन लिखने से ब्राउजर में दिखेंगे, अदरवाइज वो एक फिगर से करके आ जाएगा। आप इसको एक बार हटा के वो भी करके देखना, ठीक है, नहीं तो ब्राउजर में सामने नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है एनएलटीके डाउनलोड। अब एनएलटीके लाइब्रेरी बनी कैसे हुई है? एनएलटीके बिकॉज अभी हमने देखा लैंग्वेजेस इश्यूज, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी लैंग्वेजेस। सो जब मैं इसको आप इंस्टॉल करते हो, पिप इंस्टॉल एनएलटीके करोगे तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी एज सच इंस्टॉल नहीं होती, उसके बेस कोड ही इंस्टॉल होता है। उसके बाद देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो दे प्रोवाइड फैसिलिटी कि आपने डाउनलोड क्या क्या करना है, ठीक है। तो एनएलटीके डाउनलोड जब भी एग्जीक्यूट करोगे, जैसे अभी मैंने एग्जीक्यूट किया तो एक और विंडो खुल जाती है, ठीक है, एक और विंडो खुल जाती है, वो अभी आपके साथ शेयर नहीं हुई। तो अभी एक और विंडो दिख रही है आप लोगों को? आपको एक और विंडो दिख रही है अपार्ट फ्रॉम जुपिटर? नो सर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा से स्टॉप शेयर करके मैं पूरी अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक एक विंडो करके शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं एक विंडो दिखा रहा हूँ, अभी ये वाली विंडो दिख रही है आपको? Yes, sir. तो ये जब भी मैंने वो लाइन चलाई थी तो ये विंडो खुल जाती है। इसमें क्या है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या डाउनलोड करना है। इसमें कलेक्शंस है काफी, इसमें कॉर्पोरा है और मॉडल्स हैं जो पहले से बने हुए हैं, कई पैकेजेस हैं। सो ये सब कुछ आप धीरे धीरे, कोई बुक्स हैं, काफी कुछ है दैट यू कैन डाउनलोड। और बट आप सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इससे एक ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है। सो मैं अभी दोबारा से मैं अपनी जुपिटर वाली नोटबुक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अब जुपिटर वाली नोटबुक दिख रही ना आपको? Yes, sir. अब मैंने, क्योंकि वो इसलिए दिखाया था कि आप डाउनलोड कुछ कर पाओ, बट इसमें अब हम एक डाउनलोड करेंगे पंक्टी। पंक्टी क्या है? एक पहले से पैकेज बना हुआ है जिसके अंदर टोकनाइजेशन के एल्गोरिथम्स पहले से हैं। सो पंक्टी इज ऑलरेडी एक पूरी कलेक्शन है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये चलाना पड़ेगा। ऐसे ही आप कई डाटा सेट भी कर सकते हो, जैसे ब्राउन एक डाटा सेट है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो कॉर्पस से। आप एक एक करके भी कर सकते हो, जहाँ जैसे मैंने पहले लिखा था डाउनलोड करके आप पूरे का पूरा ग्राफिकल इंटरफेस से भी कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने पंक्टी डाउनलोड कर लिया है, पंक्टी के अंदर एनएलटीके टोकनाइज करके एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर भी काफी मॉड्यूल्स हैं। मैं चाहूँ तो पूरे का पूरा डाउनलोड कर सकता हूँ कि इंपोर्ट एनएलटीके टोकनाइज, उससे मेरा फाइल बड़ी हो जाएगी। बट अगर मुझे सेंटेंस टोकनाइजर और वर्ड टोकनाइजर दो ही फंक्शन चाहिए तो मैं सिर्फ दो कोई इसमें से निकाल सकता हूँ। तो मैंने पंक्ट करके एनएलटी टोकनाइज के अंदर सेंटेंस टोकनाइज और वर्ड टोकनाइज करके दो फंक्शन निकाल लिए।
अब ये करते क्या है, सपोज मैंने ऐसे टेक्स्ट लिखा है, ये सिंपल स्ट्रिंग है। सेंटेंस टोकनाइजर को अगर मैं इनपुट देता हूँ ये टेक्स्ट, वो क्या करेगा, जहां जहां पे सेंटेंस है उसके बेस पे मुझे टोकन बना देगा। जैसे ये बना दिया टोकन, पहला टोकन, कॉमा के बाद फिर दूसरा टोकन, फिर तीसरा टोकन, फिर चौथा टोकन। तो सेंटेंस टोकनाइजर कर क्या रहा है, मुझे एक टेक्स्ट में से सेंटेंस निकाल के दे रहा है। सो अगर खुद ये करना हो और इट वुड बी डिफिकल्ट। और ये सेंटेंस टोकनाइजर को हम थर्ड पार्टी में कई लैंग्वेजेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, उसमें हमें अलग लैंग्वेज का कॉर्पोरा डाउनलोड करना पड़ेगा। सिमिलरली वर्ड टोकनाइजर क्या करता है, अगर उसी में ये टेक्स्ट देता हूं तो मुझे एक वर्ड के टोकन्स निकाल के दे रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें भी टोकनाइजेशन की, इंग्लिश में ये बोथ दीज वर्क्स वेरी वेल। सो यू कैन सी दैट पिंकिश ब्लू को इसने एक ही टोकन बनाया। सो मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी दे हैव टेकन, बट स्टूडेंट को इसने अलग अलग में कर दिए। तो काफी एरर भी है इसमें और कहीं जगह पे इसने वर्क भी किया है। इससे बेटर टोकनाइजर भी नेट पे मिलते हैं। ये जो टोकनाइजर्स हैं दीज आर बाय डिफॉल्ट एनएलटीके का पार्ट है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने की कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो फ्रॉम एनएलटीके उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन है जिसमें मैं टोकनाइज वर्ड अगर देता हूं तो मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट बता देता है। जब मोस्ट कॉमन वर्ड निकालने हैं वो बता देता है कि इज द मोस्ट कॉमन वर्ड या कॉमा इज द मोस्ट कॉमन वर्ड। और फिर मैं उसको प्लॉट कर सकता हूँ कि इज मेरा 3 बार आया है, दा मेरा 2 बार आया है, बाकी सारे एक एक बार आए हैं। सो इन दिस वे आई कैन आल्सो प्लॉट दीज थिंग्स। सो फ्रॉम हेयर आपने याद क्या रखना है अभी, क्योंकि आप लोग पाइथन शुरू कर रहे हो। सो आपको एक तो एनएलटीके इंस्टॉल करनी आनी चाहिए, पिप इंस्टॉल एनएलटीके कर सकते हो। एनाकोंडा यूज कर रहे हो तो कोंडा इंस्टॉल एनएलटीके कर सकते हो, ठीक है। और एक बार एनएलटीके इंस्टॉल होने के बाद यू हैव टू रिमेंबर एनएलटीके में जब भी कुछ यूज करना है हमें उसके लाइब्रेरी साथ में डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे टोकनाइजर के लिए पंक्टी करके लाइब्रेरी, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, ऐसे और भी थर्ड पार्टी भी आते हैं। फिर जैसे ही हमारी वो लाइब्रेरी डाउनलोड होगी, और अभी आज का जो टेक अवे है कि आपने सेंटेंस टोकनाइज और वर्ड टोकनाइज दो फंक्शन है which we can use to tokenize any sentence or any text into sentences or text into the words. ये क्लियर है सबको?